کہ جون سا بندہ یہ کلیم کرے کہ جی مجھے میرے اندر سکلز تھی, میں نے پڑھائی کی, ٹھیک ہے, اور مجھے جاب نہیں ملی, تو میں حاضر ہوں ہر لحاظ سے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ممتاز سانول اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. ناظرین, ہم روزانہ سٹوریز پڑھتے ہیں دنیا میں کسی نہ کسی کامیاب بندے کی اور وہاں سے موٹیویشن لیتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے نہیں کہ پاکستان میں کتنے ہی ایسے ہیروز ہیں, پاکستان میں کتنے ہی ایسے موٹیویٹڈ لوگ ہیں جن کی کہانی ہم سنیں گے تو ضرور موٹیویشن بھی ہوگی اور ہم کامیابی کی طرف بھی جائیں گے. ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ حافظ صاحب ہمارے ساتھ جو موجود ہیں, 6 سال انہوں نے جاب کی اور 6 سالوں کے بعد آج یہ کمپنی کے مالک ہیں اور پاکستان کی, میرے علم کے مطابق پاکستان کی لیڈنگ کمپنیز کو جو ہے آپ بیٹ کر رہے ہیں. اور لیڈنگ کمپنی جو ہے وہ فی الحال جو ہے ایگرو ایگٹیک کے نام سے جو کمپنی آپ چلا رہے ہیں, یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی اور انہوں نے جو ہے یہ جو جتنا انہوں نے مشکل وقت جو تھا. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں, انہوں نے کمپنی جب بنائی ہے تو زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور اپنی سکل کو بڑھاتے ہوئے آج وہ کمپنی کے مالک ہیں اور کمپنی کو بڑے خوبصورت طریقے سے چلا رہے ہیں. حافظ صاحب, ہمیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیے آپ کی زندگی کے ابتدائی دن کیسے گزرے, کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے زندگی شروع کی. ایف ایس سی کے لیے مجھے اسکالرشپ مل گئی ادھر سپیریئر کالج کی طرف سے, تو ایف ایس سی میں نے ادھر سپیریئر کالج اکاڑا سے کی. پھر انجینئرنگ کے لیے, کیونکہ میں انجینئرنگ فیلڈ میں تھا, تو انجینئرنگ کے لیے میں ملتان چلا گیا, وہاں سے انجینئرنگ کمپلیٹ کی اور الحمدللہ پھر بائی چانس کہہ لیں کہ میں ایگریکلچر انجینئر بن گیا. جو میرے کیریئر کا سٹارٹ ہوا وہ جعفر بدر سے ہوا, اور میں مطلب بتانا چاہوں گا کہ جو میری جو فرسٹ سیلری تھی, میری فرسٹ سیلری 17,785 روپے. تو کسی کو بتاتے ہوئے بھی وہ تھوڑا سا ہوتا تھا کہ کوئی پوچھتا تھا کہ جی, کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہو کہ جی میری جاب ہو گئی, تو وہ سب سے پہلا کویشچن یہ نہیں کرتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی سٹارٹنگ سیلری کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تب بتاتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ یار پھر وہ ایک آپ کا تھوڑا سا نا وہ پیسے کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ کا ایک امیج بن رہا ہوتا ہے. تو وہ 17,000 سے سٹارٹ ہوا. پھر الحمدللہ کہ جب میرا فرسٹ انٹرویو تھا تو انہوں نے مجھے کہا, کہتے یار کہ اس طرح جو ہے نا آپ کو کام کرنا ہوگا. میں نے کہا سر جو, کیونکہ میں ڈگری میری تھی ایگریکلچر انجینئرنگ, میرا جو پروفیشن تھا وہ ڈرپ ایریگیشن تھا, لیکن جو میری جعفر بدرز میں جاب ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی پیسٹیسائڈز اور فرٹیلائزر میں. ٹھیک ہے, اب مارکیٹنگ کی جاب تھی, اس میں میرا سیلز کی جاب تھی, اس میں میرا کوئی کس طرح کا میرا کوئی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس کا, ٹھیک ہے. وہ اسٹڈی سے ٹوٹلی جو ہے نا وہ اپوزٹ جو ہے نا میں جا رہا تھا. میں نے ان سے کہا سر میں آپ سے یہ تو پرومس نہیں کرتا کہ میں کیا کروں گا, ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ پرومس ضرور کرتا ہوں. وہ کاشف چشتی صاحب تھے, وہ بڑے محترم ہیں میرے لیے, تو انہیں میں نے انٹرویو میں جسٹ یہ کہا تھا, میں نے کہا جی میں آپ سے اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا, ٹھیک ہے. محنت کرنے کا مجھے ویسے ہی بڑا شوق ہے, ٹھیک ہے, ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا, باقی ریزلٹس اللہ کی ذات دینے والی ہے. تو انہوں نے کہا یار آپ ایمانداری سے کام کرو, باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. تو سیکنڈ منتھ میری جاب کا سیکنڈ منتھ میں ریجنل چیمپئن بن گیا, ٹھیک ہے, ود ان 2 months, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ کہ 1 سال کے اندر اندر میری جو سیلز کے فگر تھے وہ نیشنل لیول پہ آ گئے, اور اس کے بعد 4 سال میں نیشنل لیول پہ ہی رہا. مطلب اس سیلز کی فگرز میں وہ بہتری آتی گئی, کوئی جو ہے نا ڈکلائن نہیں آیا. یہ وہاں پہ میں نے 4 سال جاب کی. وہ جب انکریمنٹ لگا وہ 1 سال کے بعد, وہ انکریمنٹ بھی 6,000 کا تھا, تو مطلب کہہ لیں کہ 23,000 پہ میں چلا گیا. ہمارا وہ سارے کے سارے جو سینئرز تھے وہ مجھے جو سیلز کی ٹیم ہے وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ یار تم اتنی محنت نہ کیا کرو, ٹھیک ہے, اتنی محنت نہیں کرنی, کیونکہ آپ کو تمہیں سیلری ملتی ہے 23,000, ٹھیک ہے, تم محنت ہم سے 4 گنا زیادہ کرتے ہو, اور ہمیں سیلری ملتی ہے 40,000 50,000, ہم محنت بھی نہیں کرتے اور ہمیں بھی سیلری بھی مل رہی ہے, تو تم کیوں اتنا کھپتے ہو. مجھے سمجھاتے تھے, وہ مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. لیکن 4 سال کے بعد, ٹھیک ہے, میں اور جو میری جس طرح گرپ تھی یہ ڈرپ ایریگیشن پہ, پھر میں نے کولڈ اسٹوریجز کے بزنس پہ فوکس کر دیا. میرے نارملی جو کلائنٹس جو بڑا کلائنٹ ہوتا ہے جو 500 ایکڑز 1000 ایکڑز والا, وہ بندہ اس کو آپ
टेक्निकली कन्विंस कर सकते हो, उसको आप इधर उधर की बातें सुना के कन्विंस नहीं कर सकते कभी भी। तो जो मेरी जो मेरा टारगेट मार्केट थी, जो मेरा जो मेन फोकस था वो बड़ा फार्मर था, 500 एकर्स वाला, 1000 एकर्स वाला। तो मेरा वहां से मतलब जो है ना, मेरा एक सारा का सारा सेटअप मेरा जो है ना वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। नहीं, मायूसी असल में जो है ना, मायूसी की जो मैं समझता हूँ कि जो मेन रीजन है जो आपको जो आपकी सराउंडिंग में लोग होते हैं ना, वो आपको डेली बेसिस पे डिप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, एज ए मुस्लिम भी हमें जिंदगी में अगर हम मायूस हो जाते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई रोला है ना। तो इसलिए मायूसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा था अपने वो मतलब जॉब कैरियर के बारे में। तो जस्ट आफ्टर 4 इयर्स मेरा इधर यूएसएल के साथ मैं बिजनेस कर रहा, मतलब उनको मैं मार्केट कर रहा था। हमारा एक प्रोडक्ट होता है, तो वहां पे गया, मुझे पता चला कि जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो वहां पे जाके मैंने उनको इंटरव्यू के लिए मैंने भी अपनी सीवी ड्रॉप कर दी। बल्कि वहां पे वो होती थी, मैडम होती थी मिस साइमा, उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ काम करें। ठीक है, तो वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद जो मेरा उन्होंने पैकेज डिसाइड किया, 4 साल के बाद जो मेरी सैलरी थी वो 2.5 लाख रुपए थी। और जो मुझे समझाते थे कि जी 50,000 हमें मिलता है और तुम 23,000 24,000 रुपए में इतनी मेहनत कर रहे हो, वो उस वक्त भी 50,000 में थे। और वो हर महीने के एंड पे प्रेशर में थे कि अब हमें कितनी सेल करनी है और अब हमें क्या करना है। दूसरा, पहले मैंने जॉब की ड्रिप इरिगेशन में, फिर उसके बाद मैं आ गया पेस्टिसाइड्स में, फिर साथ मैंने फर्टिलाइजर के बिजनेस में आ गया, फिर साथ में CIPC जो कोल्ड स्टोरेजेस का बिजनेस उसमें आ गया। अब ये जो मेरी जॉब हुई थी ये मैंने की प्रोक्योरमेंट की जॉब। मींस मैं डिफरेंट सेक्टर्स को देख रहा था ताकि मेरी पर्सनली मेरी जो स्किल्स वो इंप्रूव होनी चाहिए और मैं सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को इन फ्यूचर मतलब देख सकूं। और फिर मैंने जो USL यूनाइटेड स्नैक्स के साथ मैंने 1.5 साल का अरसा काम किया। और फिर उसके बाद जो मेरा जो जॉब कैरियर था वो USL के साथ साथ जो मेरा जॉब कैरियर वहां पे क्लोज हो गया। वहां पे सर ये जो बिजनेस का जो मेरा माइंड था ये तो मेरा स्टार्ट से ही था, लेकिन ये जो मैंने जॉब की, ये जो 6 साल का अरसा जो मैंने जॉब करता रहा हूँ, ये मैं एक बेस बना रहा था। ये फर्स्ट डे से मैंने आपको बताया कि जिस तरह मैं ड्रिप इरिगेशन में गया, फिर मैं पेस्टिसाइड्स में आ गया, फिर मैं फर्टिलाइजर में आ गया, फिर साथ में CIPC में आ गया, फिर मैं परचेज में आ गया। ये सारी की सारी एक बेस बन रही थी। और जब मैंने ये कंपनी वाला जब डिसीजन हुआ, उस टाइम मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 15,000 प्लस एकर्स के फार्मर्स थे। मैंने अपने जो सेल्स वॉल्यूम जो मैंने सोचे हुए हैं, जो मैंने बिजनेस प्लान किया हुआ है, वो मैं जैसे आता जाऊं, जिस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा ये जो मेरे पार्टनर हैं मिस्टर वकास, वो कनाडा में होते हैं, अभी वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो वो मेरे पास USL में ये प्रोडक्ट है स्प्राउट निप के नाम से, ये वो इंपोर्ट कर रहे थे कि एंटी स्प्राउटिंग है। CIPC स्टोरेजेस, हम शुगर फ्री स्टोरेजेस जिसको कहते हैं। शुगर फ्री स्टोरेजेस मींस के इसके अंदर स्टोरेज के अंदर पोटैटो स्टोरेजेस के अंदर टेम्परेचर इतना होता है कि उसमें जो पोटैटो है वो स्वीटनेस नहीं आती उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर स्वीटनेस नहीं आती, लेकिन जब टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 डिग्री प्लस होता है तो फिर उस पोटैटो के अंदर स्प्राउट्स बन जाते हैं। जो पोटैटो स्प्राउटिंग होती है, फिर उसके लिए हम स्टोरेज के अंदर एक स्प्रे करते हैं जिसको एंटी स्प्राउटिंग भी कहते हैं। CIPC हम स्प्राउट निप के नाम से मार्केट कर रहे हैं, ये हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 2 साल पहले मेरे पास वो वकास साहब आए, वो कहते हैं कि यार इसी तरह हम इस प्रोडक्ट को कर रहे हैं। तो मेरा भी मतलब माइंड था इसको करने का। पहले वो डील कर रहे थे पेप्सी को, USL, कैंडीलैंड, FFF, डालडा, इन तमाम कंपनीज के साथ इस प्रोडक्ट को डील कर रहे थे। तो फिर मेरे ज़हन में था कि ये पूरे पाकिस्तान की मार्केट है। अगर हम स्टोरेजेस वालों को एजुकेट करें कि आप शुगर फ्री स्टोरेजेस की तरफ आएंगे, तो जो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो शुगर फ्री स्टोरेजेस है। ठीक है कि इसकी मार्केट है। नॉर्मली अगर आप कह लें कि दूसरा पोटैटो अगर वो 15 रुपीज पर केजी अगर सेल होता है, तो ये 30-35 रुपीज पर केजी।
मींस आप इसको डबल पैसों में सेल कर सकते हैं। अगर वो दूसरी, अगर आप कह रहे हैं कि 120 kg की अगर बोरी अगर वो 3000 रुपए की है तो ये 6000 प्लस में सेल हो सकती है। तो फिर हमने मतलब मार्केट, हमने डिसाइड किया कि हम मार्केट को एजुकेट करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली वो बहुत बड़ा एक काम था कि 2.5 लाख रुपए को छोड़ना और एक नए सिस्टम को वो इस तरह लेकर चलना, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक क्लाइंटेज जो थी वो मेरे पास वो थी, जिसके लिए मुझे भी उसकी तरफ से कॉन्फिडेंस था, तो हमने स्टार्ट लिया। तो पहले साल हमने पाकिस्तान की सबसे जो लीडिंग कंपनी थी उसके बिजनेस को भी बीट कर दिया। ये दीपालपुर एरिया पाकिस्तान का हब है स्टोरेजेस में, तो इसका 90% बिजनेस हमारे पास है और 10% बिजनेस बाकी कंपनीज के पास है। लास्ट ईयर हमने पाकिस्तान में एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया 100% CIPC का। उससे क्या होता है, ये जो शुगर फ्री स्टोरेजेस होते हैं इसमें सारा का सारा जो मामला चाह रहे होते हैं वो होते हैं डिफेक्ट्स के साथ। तो जो हमने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया उससे ये हुआ है कि डिफेक्ट्स लेवल जो है ना वो कम से कम हो गया है। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके लिए इस साल हमें बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है। इसके साथ साथ हमने ये 1 माह पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक और कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा ली है सोलर सिस्टम के हवाले से। जिस तरह ये नेट मीटरिंग का जो आजकल वो चला हुआ ट्रेंड, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली है। और बाकी सारे बिजनेस की तरह फर्स्ट मंथ में हमें बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि ये हमारी ये कंपनी भी पाकिस्तान में लीड करेगी। का जिस तरह कह रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो इन्वेस्टमेंट की ऐसे कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास अच्छे आइडियाज हैं और आप समझते हैं कि आपके उन आइडियाज से किसी को फायदा होगा, तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो मेरी तरफ से बड़ा ये एक ओपनली मेरी मैसेज है मेरी तरफ से, आप कोट कर सकते हैं इस चीज को कि जौन सा बंदा ये क्लेम करे कि जी मुझे मेरे अंदर स्किल्स थी, मैंने पढ़ाई की, ठीक है, और मुझे जॉब नहीं मिली, तो मैं हाजिर हूं हर लिहाज से, ठीक है। लेकिन जो बंदा ये चाहता है कि मुझे जॉब मिले, वो आके प्रेजेंटेशन देगा एक कि उसको जॉब क्यों दी जाए, और अगर उसको जॉब देते हैं तो उसकी जॉब से हमें क्या फायदा होगा, ठीक है। तो हम जॉब देने के लिए हाजिर हैं। पहली बात, अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी नहीं जी मैं बिजनेस करना चाहता हूं, वो अपना बिजनेस आइडिया लेकर आए कि अगर उसके साथ अगर हम इन्वेस्ट करें, फाइनेंस करें, तो क्यों करें, ठीक है। अगर हम उसको फाइनेंस करते हैं उससे उसको क्या फायदा होगा और हमें क्या फायदा होगा, ठीक है। तो अगर किसी के पास आइडिया है तो हम इस चीज को जो है ओपनली जो है ना एक्सेप्ट करते हैं। सुन रहे हैं कि हाफिज साहब ने एक ऐलान किया है कि अगर आपके पास आइडिया है, आप समझते हैं कि आपको जॉब मिलनी चाहिए या आपको कारोबार करना चाहिए, तो हाफिज साहब दीपालपुर में रीजनल ऑफिस है इनका, आप दीपालपुर में आके हाफिज साहब से रब्ता कर सकते हैं ऑफिस में, और इन्हें बताएं कि आपको क्यों जॉब देनी चाहिए। बड़े खूबसूरत सवाल है कि आप बताएं कि मार्केट में मेरे जैसा ये काम कोई बंदा नहीं कर सकता। हाफिज साहब आखिरी मैसेज जो है, आवाम जो है वो आजकल बड़ी मायूस और बड़ी परेशान सी रहती है, वो हमारी बात इसी पे ही हो रही थी कि जॉब्स नहीं मिल रही और पाकिस्तान का जो है वो मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान एक हालांकि एग्रीकल्चरल कंट्री है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं बस आपको यही मैसेज देना चाहूँगा अपने तमाम जूनियर्स को, तमाम भाइयों को, कि आप ना कभी भी जिंदगी में आपने किसी नाकाम या बुज़दिल आदमी से जिंदगी में मशवरा नहीं करना। मशवरा हमेशा जिंदगी में सक्सेसफुल आदमी के साथ करें या बहादुर आदमी के साथ मशवरा करें। वो आपको कभी भी जिंदगी में डिप्रेस नहीं करेगा और आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा और आपको सही डायरेक्शन देगा जिस पे चल के आपको सक्सेस मिल सकती। बिल्कुल। नादरीन, आपने सुना कि हाफिज साहब जो हैं वो आज से 6 साल पहले 17,000 की जॉब से स्टार्ट करते हैं। आज वो 2 कंपनीज के जो हैं वो ओनर हैं और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। नाज़रीन, मायूसी जो है वो गुनाह है। अल्लाह पाक की तरफ से भी ये हमारे ऊपर हुक्म सादर है कि हमें मायूस नहीं होना, अल्लाह पाक की रहमत से मायूस नहीं हो रहा। पाकिस्तान में 4 मौसम है, पाकिस्तान में ज़राअत है, बेहद इसमें वुसअत की ज़रूरत है, इस सेक्टर में काम नहीं किया गया। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप कदम बढ़ाएं, कायनात का मालिक ज़र्रा ज़र्रा आपके साथ लगा देगा, आपकी मेहनत में शामिल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान की होगी, कामयाबी पाकिस्तानी की होगी और आप भी कामयाब होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया।